Hello students, welcome back to my channel and good morning to all of you. I hope that you are doing well. In today's session, we will see the question paper English literature paper number 2. It is the paper of Maharashtra Set examination as it is the questions I picked for you. So the first question we will start in this session, and if you are liking my session, if you really think that it's helpful for your upcoming examination, so stay tuned with me and let's start. Wordsworth and Coleridge differed with each other on the issues of. तो वर्ड्सवर्थ और जो हमारे कोलरिज है उनमें थोड़ा सा हम बोलेंगे कि क्या हो गया था, डिफरेंस थे उनके पोएटिक डिक्शन में को लेकर, इंट्यूशन को लेकर, इमेजिनेशन को या रीजन को. तो करेक्ट आंसर है पोएटिक डिक्शन. ए इज द करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. ओके, सो हु इज जनरली नोन एज द ट्रांसलेटर ऑफ होमर. तो होमर का ट्रांसलेटर किसे कहा जाता है? बेन जॉनसन, जॉन मार्स्टन, जॉर्ज चैपमन, जॉर्ज वेबस्टर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. जॉर्ज चैपमन को जनरली कहा जाता है ट्रांसलेटर ऑफ होमर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, Why is the Jacobean era not called the Jameson era? Jacobean era को Jameson era क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि Jacob was the nickname of King James, because the Church of England decided to call it Jacobean era, because Jacobus is the Latin counterpart of the name James, because the House of Lords decided to call it Jacobean era. So the correct answer है हमारा C. Jacobs, because Jacobs is the Latin counterpart of the name James. ठीक है, option number C is correct. Next question we will see. The comedy of humors is based on the ancient psychological theory. The comedy of humors was based on the ancient psychological theory of the four humor. Which were they? So the correct option देख लेते हैं हम. पहले option, mucus, pus, tears and saliva, red, black, yellow and green, blood, fulgum, choler and the melancholy, fat, protein, vitamin, carbohydrate. So the correct option हमारा हो जाएगा C. Blood, fulgum, choler and melancholy. Next question we will see, guys. Periodical essay of the 18th century was primarily centered around. जो हमारे periodical essays थे वो coffee houses पे, taverns पे, ale houses पे, the Royal Exchange. So the correct option is coffee houses. Next question. थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ मैं. War of the Roses in English history was fought between the two houses. जो War of the Roses हुआ था दो houses के बीच में हुआ था. ठीक है, तो वो क्या है? कौन से दो houses थे? तो वो houses का नाम था Lancaster and York. A option is correct here. Next question. Fair quiet, have I found thee here, and innocence thy sister dear. Mistaken long I sought you then in busy companies of men. These lines are written by. ठीक है, lines को दोबारा ठीक से पढ़ लो. Let's see which one is correct. Fair quiet have I found thee here, and innocence thy sister dear. ठीक है, John Milton, Andrew Marvell, George Herbert, John Donne. So the correct option is Andrew Marvell. ठीक है, next question. Which one of the following is not written by Charles Lamb? Old and New Schoolmaster, Of Stimulation and Dissimulation, Imperfect Sympathies, A Bachelor of Complaint Against the Behavior of Married People. Which one is correct here? क्वेश्चन नंबर है हमारा E8. तो इसका करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है कि कौन सा चार्ल्स लैम ने नहीं लिखा है. तो चार्ल्स लैम ने नहीं लिखा है यहाँ पे ऑफ सिमुलेशन एंड डिस सिमुलेशन, क्योंकि ये वर्क है हमारे फ्रांसिस बेकन का ऐसे है ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग पोएट कंपोज द गिवन लाइन. ठीक है, कौन से पोएट है जिन्होंने ये लाइन लिखे हैं? ठीक है, देख लेते हैं. Dash the sounding
cataract haunted me like a passion. The tall rock, the mountain, and the deep and gloomy wood, their color and their form were to me an appetite. P.B. Shelley, Wordsworth, Robert Southey, Thomas D. Quincy. So the correct answer देख लेते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 9. ठीक है. So it is the क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइन है. It's written by the Wordsworth. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ क्लोज्ड वॉवल. ठीक है. क्लोज वॉवल में क्या होता है? अ पार्ट ऑफ द टंग राइजेस टू द हाफ ओपन पोजिशन. हमारी जो टंग है ऊपर उठ जाती है हाफ ओपन पोजिशन में. ठीक है. अ पार्ट ऑफ द टंग रेज टू हाफ क्लोज पोजिशन में. अ पार्ट ऑफ द टंग रेज टू द ओपन पोजिशन और अ पार्ट ऑफ अ टंग क्लोज पोजिशन राइज टू द. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा अ पार्ट ऑफ द टंग राइजेस टू हाफ ओपन पोजिशन, क्लोज वॉवल. ठीक है. That thou shalt die. This line is an example of mime, fallacy, paradox, parable. Which one is correct here? Question number 10. ठीक है. तो ये जो है ये किसका एग्जाम्पल है? So it is a paradox. It is a paradox. पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है. ठीक है गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मॉर्फिम बिलोंग टू. मॉर्फिम बिलोंग करता है किसे? ठीक है. मॉर्फिम बिलोंग करता है. ऑप्शन देख लेते हैं. मॉर्फिम बिलोंग्स टू. अ मॉर्फिम बिलोंग्स टू द phonological system of a language. ठीक है. The grammatical and phonological system of language. The grammatical system of language or the पैरामेटिक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो हमारी मॉर्फिम है, मॉर्फिम बिलोंग करती है ग्रामेटिकल सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएट. पोएट कौन नहीं है इसमें से? सैमुअल बेकेट, रॉबर्ट ग्रेव्स, फिलिप लार्किन, डब्ल्यू.एच. आर्नन. ये तीनों तो पोएट है. सैमुअल बेकेट पोएट नहीं है. ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. 14 क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा. George Bernard Shaw, while commenting on female character, observed that she left her family to begin a journey in search of self-respect and apprenticeship. या apprenticeship, जो apprenticeship होती है वो apprenticeship and to life, and her revolt is the end of a chapter of human history. Here Shaw is referring to. तो किस वुमेन की बात? शॉ या कौन सा शॉ का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जो डिस्क्रिप्शन दी है? तो कौन है वो? नोरा इन डॉल्स हाउस, जॉन ऑफ आर्क इन सेंट जॉन, गर्ट्रूड मॉरेल इन सन्स एंड लवर्स, एना इन एना कैरेनिना. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नोरा इन डॉल्स हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वर्क ऑफ चार्ल्स डिकिंस हैज as many as 356 कैरेक्टर. ठीक है. चार्ल्स डिकिंस का कौन सा वर्क है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर है देखने को मिलते हैं हमें? सो द हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, द पिकविक पेपर एंड द डेविड कॉपरफील्ड. तो सबसे ज्यादा कैरेक्टर है पिकविक पेपर. सी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर. ठीक है. तो लाइन देख लेते हैं हम. देन वेलकम ईच रीबफ द टर्न्स अर्थ स्मूथनेस रफ, ईच स्टिंग दैट बर्ड्स नॉट सिट नॉर स्टैंड बट गो, बी अवर जॉयस 3 parts पेन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. सो ये पोम कौन से पोम्स के लाइन है? ये
The lotus eaters, Rabbi ben Ezra, Tyresis, Eleusis. So the correct option is Rabbi ben Ezra. Next question. Question number 15. Name the writer who created the binary between head consciousness and blood consciousness. तो हेड कॉन्शियसनेस और ब्लड कॉन्शियसनेस जो है क्वेश्चन नंबर 15, तो हेड कॉन्शियसनेस एंड हमारा ब्लड कॉन्शियसनेस, इसमें डिफरेंशिएट बाइनरी बिटवीन किसने ये क्रिएट किया है, उस राइटर का नाम बताना है हमें। तो देख लेते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, D.H. लॉरेंस, जॉन केट्स, चार्ल्स डार्विन, एरिक फ्रॉम। So the correct option is D.H. लॉरेंस here. Next question. 20 love poems and a song of despair is collection of poems by whom? तो ये कलेक्शन किसकी है? क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लो। T.S. Eliot, विलियम वर्ड्सवर्थ, पाब्लो नेरुदा, A.K. रामानुजन। So 20 love poems and a song despair. So it is by the Pablo Neruda. C is correct. Next question. In the inheritance of loss, the characters are trapped in their own world, their rigid class system, generation gap, superstitions. Which one is correct here? So the correct हो जाएगा हमारा the inheritance of loss, जो है वो कैरेक्टर कहाँ पे कैद हो जाते हैं। Question number 21 is the correct. India's rigid class system. B is correct here. Next question. The playwright Ole Soyinka is from. ओले सोयिंका कहाँ से बिलोंग करती है? तो ओले सोयिंका जो है हमारी नाइजीरियन राइटर है। नेक्स्ट, मनोहर मालगांवकर नॉवेल डिस्टेंस ड्रम डिपिक्ट। मनोहर मालगांवकर का डिस्टेंस ड्रम्स क्या डिपिक्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 22। सो द करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस ड्रम है वो क्या डिपिक्ट करता है? फैमिली लाइफ ऑफ डॉक्टर, रिलीजियस लाइफ ऑफ रूरल पीपल, आर्मी लाइफ एक्सपीरियंसेस या सिटी लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, आर्मी लाइफ एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइटल ऑफ द वेस्टलैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम। द टाइटल ऑफ द वेस्टलैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम ईशोपनिषदा, द बाइबल, द गोल्डन बुक, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। ओके, क्वेश्चन नंबर 20. The wasteland is derived from. टाइटल वेस्टलैंड कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारे T.S. Eliot ने लिया है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। J.C. वेस्टन की बुक है ये। J.C. वेस्टन की बुक में से टाइटल उठाया है T.S. Eliot ने अपने द वेस्टलैंड पोम का, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। नेक्स्ट, विच आर द पैसिव लैंग्वेज स्किल। पैसिव लैंग्वेज के स्किल कौन से हैं वो हमें बताना है। रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो लिसनिंग एंड राइटिंग इज द करेक्ट, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन. Arnold Morrell's touchstone were meant to promulgate the idea of. Arnold's का moral touchstone जो है were meant to the promulgate the idea of. So materialism, symbolism, civility, imagism. Which one is correct here? So the correct answer is civility, C correct. Next question. Aristotle argues that comedy is an imitation of the character of. So here देखना है हमें special type, lower type, higher type, funny type. Which one is correct? So the lower type is the correct here. Lower type is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्नोल्ड्स मॉरल हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है. माइथेम इज अ वर्ड क्वाइन बाय. माइथेम ये वर्ड किसने क्वाइन किया था? माइथेम तो क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस, रोलैंड बार्थ्स, जैकब्स डेरिडा, जैक्स लकान. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस. Next question. Which play of Ben Jonson has been acclaimed as observation to perfection, the three classical unities? ठीक है, कौन सी बेन जॉनसन की प्ले है अक्लेम करती है एज ऑब्जर्वेशन जो मानी जाती है परफेक्शन है थ्री क्लासिकल यूनिटीज की? वॉल्पोम, द अल्केमिस्ट, बार्थोलोम फेयर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर. विच वन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 28 is here on the screen and the correct option is the alchemist. B is correct option. Next question.
द टर्म ऑब्जेक्टिव करोलेटिव आ जाते हैं हमारी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में। करेक्ट आंसर इज ए। बहुत बार रिपीट हो गया मेरे ही पीवाईक्यू में, मैंने शायद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते बहुत बार वो क्वेश्चन अननोइंगली मेरे से रिपीट हो गए। ठीक है। इन विच ऑफ द पोएम डज पोप ग्रुप his literary rival critic together as the general enemy of dullness? In which poem does Pope group his literary rivals and critics together? एक साथ ही अपने enemy को डाल दिया उन्होंने dullness. The Dunciad में the epistle to Dr. Arbuthnot, the rape of the lock or the moral essay. Which one is correct here? So the correct answer है, क्या कहता है क्वेश्चन कि ये कौन सा वर्क है जिसमें अपने जो राइवल्स है उन्होंने क्या कहा, डलनेस कहा, एज ए फुलिश कहा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, डंसियाड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो आप अभी अपकमिंग एग्जाम को प्रिपरेशन करें तो आपको हेल्प हो जाएगा। एक क्वेश्चन जहां से आपको मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सी। विलियम कांग्रेस प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड इज, द वे ऑफ द वर्ल्ड क्या है? तो वे ऑफ द वर्ल्ड ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैच करना है हमें। लिस्ट ए और बी दे रखी है। क्वीन मॉब, अ लेडी ऑफ द लेक, कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर। देखो दो तो हमारे बहुत पहचान के हैं। एक तो है हमारा कन्फेशन ऑफ ओपियम ईटर, डी क्वेंसी का है। तो तीसरे का हमारा हो जाएगा बी। तो तीसरे को बी, यहाँ एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा था 33 जो हमें मैच करना था। ठीक है, क्वीन मॉब शेले का है एंड कन्फेशन ऑफ लोनलीनेस लैम्प का है। क्वीन मॉब जो लिखते हैं हमारे शेले, थॉमस डी क्वेंसी का कन्फेशन ऑफ ओपियम ईटर, लोनलीनेस एंड आफ्टर अ हॉलीडे हमारे लैम्प का, एंड बच जाता है हम द लेडी ऑफ द लेक इज बाय वॉल्टर स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Christopher Marlowe's blank verse that became the staple medium for the latter Elizabethan and Jacobean dramatic writers was calling as the mighty line by. ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो का ब्लैंक वर्स दैट बिकेम द स्टैम्पल मीडियम ऑफ द लैटर एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामेटिक राइटिंग वाज कॉल्ड एज अ माइटी लाइन बाय बेन जॉनसन, David Lodge, Robert Greene and Thomas Nash. Which one is correct here? So the correct option is Ben Jonson. ठीक है, ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन किसने कहा था? तो माइटी लाइन कहा था हमारे बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉफ्री चौसर वॉज ट्रस्टेड एंड एडेड बाय 3 सक्सेसिव किंग्स, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड थर्ड एंड नेक्स्ट व्हाट? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर इज हियर? तो हेनरी फोर्थ इज करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑफ द रेप ऑफ द लॉक ड्रॉज अपॉन द इंसिडेंट इन विच लॉर्ड पेटरेज स्निप्ड ऑफ द लॉक ऑफ हेयर ऑफ। So the Fanny Brown, Belinda, Christina, Arabella Farmer. So the correct option is Arabella Farmer. D is correct. Curriculum vitae by Muriel Spark is, curriculum vitae by Muriel Spark ये क्या है? Question number 37 and it is an autobiography. It is an autobiography. Next question. Name the depth novel of Kingsley Amis. Kingsley Amis का depth novel हमें पहचानना है। लकी जिम है, द अनसर्टन फीलिंग्स है, टेक अ गर्ल्स लाइक यू है, या फिर एंटी डेथ लीग। सो द करेक्ट ऑप्शन है लकी जिम। मिथ ऑफ, ठीक है, मिथ ऑफ सिसिपस 1942 इज रिटन बाय, मिथ ऑफ सिसिपस लिखा है हमारे अल्बर्ट कैमुस ने, लिखा है हमारे अल्बर्ट कैमुस ने। 38 का क्वेश्चन नंबर जो है उसका हो जाएगा बी करेक्ट। Which among the following is not a work of Bertolt Brecht? कौन सा वर्क बर्टोल्ट ब्रेक्ट का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 एंड 39 का आंसर हो जाएगा हमारा आउटसाइडर, क्योंकि ये बाकी के पूरे वर्क हमारे बर्टोल्ट ब्रेक्ट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द कोरल आइलैंड? कोरल आइलैंड के ऑथर कौन है? तो ऑप्शन ग्राहम ग्रीन, Anthony Powell, Army Valenti and Agnes Wilson.
ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे आर्यम बैलेंटाइन. ओके, द कोरल आइलैंड इज बाय आर्यम बैलेंटाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द विच इज द पोम रिटन बाय. विच पोम किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 40. सो विच इज अ पोएम बाय वॉल्टर डी ला मेयर. Next question, it is better to have loved and lost than never to have loved at all. Who composed this line? It is better to have loved and lost than never to loved and loved at all. ठीक है, अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट. क्वेश्चन नंबर 41. सो ये लिखा था हमने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अल्फ्रेड टेनिसन. What is the common among the following? नीचे दिए गए वर्क में से क्या कॉमन है? If I die today, Atom the Serpent, The Drum Tantra, The Awakening, all are travelogues है, allegories है, satires है या कैंपस नॉवल है? क्या है ये सब के सब? अगर इन वर्क्स को हम पढ़े कीनली, अगर आप इस वर्क्स को देखो तो ऑल क्या है? तो अगर आपको एक भी नॉवल इसमें की पहचान की है तो पता चल जाता आपको द अवेकनिंग ये एक कैंपस नॉवेल्स है. ये सब के सब कैंपस नॉवेल्स है. आपका आप सर्च करो और इस नॉवेल किसने लिखे है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोम द लैंड वाज रिटन बाय. द पोम लैंड किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 42. सो लैंड इज रिटन बाय Victoria Sackville West is the correct option, D. Next question, what is the name of the king in Shakespeare's play Henry IV? शेक्सपियर का प्ले हेनरी फोर्थ जिसमें किंग का नाम क्या था? रिचर्ड, डगलास, बॉलिंगब्रोक और एडवर्ड. सो द हेनरी फोर्थ का जो पार्ट 1 था शेक्सपियर का प्ले, उसमें राजा का नाम बॉलिंगब्रोक था. नयनतारा सहगल वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द नॉवेल. नयनतारा सहगल को कौन सी नॉवेल के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? सो द करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, प्लान्स फॉर डिपार्चर. प्लान्स फॉर डिपार्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन. इंडिया में इंग्लिश मीडियम किसकी वजह से शुरू हुआ? हु वाज दैट पर्सन? सो द हमारा करेक्ट ऑप्शन है मैकॉलेज मिनीटन, एजुकेशन 1835. C is correct. Next question, Coleridge's statement regarding the poet's ability that dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate relate to fancy, reason, secondary imagination या primary imagination. तो कोलरिज को अगर हम देख लेते हैं तो कोलरिज का जो डिसॉल्व है, डिफ्यूज है, डिस्पैट्स है, इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेट करता है उनके C option, secondary imagination से. C is correct. Next question, the earliest form of English were brought to Great Britannia by. ठीक है. Question number 47. Anglo-Saxon settler, Nordic tribe, French invader, Dutch immigrants. Which one is correct here? So the A is correct here, Anglo-Saxon settlers. What is supposed to be the conceit in metaphysical poetry? What is meant by the conceit? ओके, कंसीट का मीनिंग या कंसीट क्या है? तो कंसीट का मतलब होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, द मोस्ट हेट्रोजेनियस आइडिया योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. which one is not the term used by the Arnold in culture and anarchy? ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे हेलेनिस्ट. Zuri and Friday are character in. Zuri and Friday कौन से वर्क के कैरेक्टर है? कौन से वर्क में आ जाते हैं ये कैरेक्टर? तो हमारे रॉबिन्सन क्रूसो. ठीक है गाइस, बाकी के जो 50 क्वेश्चन है हम ये पार्ट 2 में हम इसे देख लेंगे.